ہم سب لوگ بیٹھیں گے. کیا ہم خوش ہیں؟ ہم اس لیے بھی خوش ہیں کیونکہ ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور جب کلام سنایا جاتا ہے تو اس وقت خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، اور جب ہم پرارتھنا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا دعا کرنا اور کلام سننا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم خداوند سے روبرو بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت میں ہم بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. تو آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سنیں گے، اور میرا ایمان ہے جتنے آج سننے کے لیے آئے ہیں وہ برکت پائیں گے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو، آج کا ٹاپک ہے کنگڈم آف دا فادر. تو اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی بادشاہی کے بارے میں، خداوند کی نئے یروشلم کے بارے میں اور خدا باپ کی بادشاہی کے بارے میں سنیں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب لوگوں کو پھر سے خداوند کے لہو میں چھپانا چاہتا ہوں. خداوند باپ، تو ہمیں سننے والے کان اور سمجھنے والا دل دینا، اور پیارے یسوع پوتر آتما سے تو ہماری رہنمائی کرنا. خداوند باپ، تو ہماری زبان بن جانا، ہمارے کان بن جانا، تاکہ ہم تیری آواز کو کہہ سکیں، تیری آواز کو سن سکیں، یسوع کے نام میں آمین. کنگڈم آف دا فادر، باپ کی بادشاہی. ان دنوں میں ہم جو سرمن کی سیریز لے کے آئے تھے اس میں مین ٹاپک تھا خدا کی بادشاہی. اور خدا کی بادشاہی پر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہاں سے یہ بادشاہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ اس کے 3 لیول ہیں، میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ سننا چاہتا ہوں. پہلا لیول خدا کی بادشاہی کا کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ پاک روح. جب پاک روح پوتر آتما اپنا تخت ہمارے دلوں میں لگا لیتا ہے تو اس وقت سے خدا کی بادشاہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تخت تیرا لگ جاوے خداوند یہوہ الوہیم، اور اس کا تخت ہمارے دلوں میں لگ جاتا ہے. آج جب خدا کی بادشاہی کی ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی بادشاہی پہلے ہمارے دلوں میں آتی ہے اور اس کا تخت لگ جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنگڈم آف دا ہولی اسپرٹ، پوتر آتما کی بادشاہی ہمارے اندر. دوسرا، جب خداوند نے کہا ہے، خداوند نے نیکودیمس سے کہا تھا کہ جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو پہلے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، بپتسمہ لینا اور پھر پوتر آتما کو ریسیو کرنا. اور جب پوتر آتما ہمارے اندر ہوگا اور ہم خداوند میں بڑھتے جائیں گے تو اب وقت قریب ہے کہ ہم اگلی بادشاہی کی طرف بڑھیں. اور وہ اگلی بادشاہی کیا ہے؟ کنگڈم آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی. اور 1000 سالہ بادشاہی کے اوپر پچھلی دفعہ ہم نے بات کی. اور کہاں پر خداوند اپنا تخت لگائے گا اس وقت؟ ہمارے دلوں میں نہیں، اگلا لیول یروشلم میں. پہلے اس نے اپنا تخت ہمارے دلوں پر لگایا اور راج کیا. اب وہ اپنا تخت یروشلم میں لگائے گا 1000 سالہ بادشاہی میں، اور پوری دنیا پر بادشاہی کرے گا. ہاللیلویہ. یہ ہے خداوند کے پلان میرے عزیزوں، اور اس کو آج ہم سمجھیں گے. اس کے بعد ایک اور پلان ہے جس کو ہم دیکھیں گے، کنگڈم آف دا فادر. پھر باپ کی بادشاہی کو بھی ہم دیکھیں گے یسوع کے بعد بھی. اور وہ بادشاہی کون سی والی ہے؟ خدا باپ کی بادشاہی کب آئے گی؟ جب نیا
यरूशलेम आएगा। हालेलुया। नया यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो इस दुनिया के पत्थरों ईंटों से वो नहीं बना, वो आसमान से बनाया गया है। और आज हम खास तौर पर उसी के बारे में सीखेंगे। खुदा की यानी बाप की बादशाही के बारे में हम सीखेंगे। और मेरे अजीजों, आज की जो खूबसूरत आयत हमने पढ़ी वो ये है यशाया 46 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। और मैं कहता हूं हम सब इस आयत को रिपीट करेंगे। पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूं और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तिदा से अंजाम की खबर देता हूं और अयामे कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूं और कहता हूं मेरी मसहलत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। हालेलुया। ये पिता परमेश्वर कहता है मेरी इच्छा और मेरी सलाह जो मैंने कर दी है वो पूरी होगी। पिता परमेश्वर ये कहता है। दुनिया चाहे जिस तरह से मर्जी अपने प्लान कर ले, शैतान जिस तरह से भी खुदावंद के प्लान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। खुदावंद कहता है मैंने जो प्लान किया है वो प्लान उसी के मुताबिक चलेगा। और मेरे अजीजों, वो प्लान हम देखते हैं यहां पर। ये है खुदावंद का प्लान। इसको फ्यूचर प्लान ऑफ गॉड हम कह सकते हैं। यहां पर एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। पहली तस्वीर क्या नजर आ रहा है वैसे यहां पे आपको? एक पिट है, एक गड़ा है, अथाह कुंड है और उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अबलीस बांधा गया है 1000 साल के लिए। इसको कहते हैं बाइंडिंग ऑफ द सेटन, यानी अबलीस को यहां पर 1000 साल के लिए बांधा गया है। और उसके बाद हम इन 5 प्लान्स को देखेंगे जो खुदा ने तरतीब दिए हैं, प्लान किए हैं। एक एक करके हम इनको खोलते हैं। ये है जी। तो इसमें हम क्या देखते हैं? पिछली दफा हमने पढ़ा था कि अबलीस को 1000 साल के लिए बांध दिया गया। ये कहां पर हम देखते हैं? प्रकाश दी पोथी 20वां बाब उसकी पहली 3 आयत में। रेवलेशन मुकाशफा 20वां बाब पहली 3 आयतें लिखा है। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते हुए देखा जिसके हाथ में अथाह गड़े की कुंजी, यह है अथाह गड़ा, अथाह गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। तो अबलीस जो है वो आज कौमों को गुमराह कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि खुदावंद अबलीस को बांध देगा और उसे अथाह गड़े में बंद कर देगा और फिर वो कौमों को, लोगों को गुमराह नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं 1000 बरस के लिए दुनिया में शांति हो जाएगी। लड़ाइयाँ झगड़े, ये आज जो यूक्रेन की लड़ाई आपको नजर आती है, जो घरों में लड़ाई नजर आती है, जो दोस्तों में लड़ाई नजर आती है, ये सारी खत्म हो जाएगी।
वो दौर वंडरफुल दौर होगा, वो दौर सलामती का दौर होगा, वो प्रभु यीशु की 1000 साला बादशाही का दौर होगा। और तख्त कहां पर लगेगा? यरूशलेम में। और इसको बोलते हैं किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मिलेनियम। मिले का मतलब होता है 1000 और एनियम यानी साल, 1000 साल की बादशाही, मिलेनियम। और उसमें 1000 साल की बादशाही में हमारे पास जो प्लान खुदावंद का नजर आता है वो हमें हिजकियेल की किताब उसके 40 से 48 बाब के अंदर पूरा प्लान आप पढ़ सकते हैं कि खुदावंद किस तरह से एक बहुत बड़ा शहर बनाएगा। कहां? यरूशलेम में। यरूशलेम एक बड़ी खास जगह है। आज भी लोग, आज भी कौमें यरूशलेम को हासिल करना चाहती हैं, कैप्चर करना चाहती हैं, उसको अपना दारुल खिलाफा बनाना चाहती हैं, राजधानी जिसको कहते हैं वो बनाना चाहती हैं। और अबलीस का भी पूरा ध्यान उसके ऊपर है, क्योंकि वो खुदा के प्लान को गिरा कर वो वहां पर अपनी किंगडम खड़ा करना चाहता है। और ये जो जंग आपको जो नजर आएगी वो इसी के ऊपर है। और लेकिन शैतान हारा हुआ है, वो हारेगा और खुदावंद का प्लान जो उसने इज़िकियल की किताब में किया था वो पूरा करेगा। और इसी तरह पूरी डिटेल लिखी हुई है कि वो शहर किस तरह से होगा, उसके कितने दरवाजे होंगे, शहर के दरमियान में से एक दरिया, चश्मा बहेगा और वो चश्मा फिर किस तरह से डेड सी में जाकर पड़ेगा और डेड सी फिर से लिविंग सी बन जाएगा। वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा दरिया बन जाएगा। और इसी तरह खुदावंद की हैकल भी इसके अंदर आएगी। और सारे ये खुदावंद अपने खादमों को जो आज गवाहियां उसकी देते हैं उनके लिए जगह बनेगी। वहां पर वो क्या होंगे? खुदावंद के काहिन होंगे, जाजक होंगे। वो याद रखें, ये प्लान है खुदावंद का 1000 साला बादशाही के लिए। उसके बाद फिर क्या होगा? खुदावंद का अगला मंसूबा क्या होगा कि लिखा था ना, अबलीस को 1000 साल के लिए बांधा और उसे फिर थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा। और जब खोला जाएगा तो वो जूझ मजूझ की सारी कौमों को इकट्ठा करके, पूरी दुनिया की कौमों को इकट्ठा करके तो वो यरूशलेम शहर के गिर्द ले आएगा। दोबारा वो प्लान करेगा कि मैं तबाह कर दूं खुदा की बादशाही को। और मेरे अजीजों, वो कोई 4-5 कौमों को, 10 कौमों को नहीं, यस्सु की 1000 साला बादशाही से पहले भी एक जंग है, उसको हर मजदून की जंग कहते हैं। उसमें कोई 10 से 15 कौमों, मुल्क उसमें शामिल हो सकते हैं और बाइबल में उनका भी नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये जो जंग है 1000 साला बादशाही के बाद की जंग है, जब शैतान को अथाह गड्ढे से खोल दिया जाएगा तो वो पूरी दुनिया को फिर से गुमराह कर देगा। और गुमराह करने के बाद वो लड़ाई के लिए उन्हें ले आएगा यरूशलेम शहर के गिर्द। और यरूशलेम पूरी दुनिया की फौजों से घेरा जाएगा। और अब यहां पर फाइट कौन करेगा? जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार दे। और उस वक्त फिर यहोवा पाक खुदा अब आसमान से आग को भेजेगा और वो आग इन सारी फौजों को खा जाएगी। और फिर क्या होएगा? अबलीस जो है उसको अब वो बांधा नहीं जाएगा। अब अबलीस का क्या अंजाम है? खात्मा। अब बांधना नहीं है, अब खात्मा कर दिया जाएगा। और वो आग की झील में, पंजाबी की कहते हैं, अग दी झील दे विच उन्हें सुटिया जाएगा। और वहां पर एक और बंदा भी होगा, झूठा नबी भी, जो यस्सु की बादशाही में
1000 साल बादशाही से पहले वो दुनिया को गुमराह करता था, वो और इब्लीस और मुखालिफे मसीह, ये सब आग की झील में डाले जाएंगे। इसके बाद एक और चीज भी आग की झील में डाली जाएगी। वो कौन सी है? मौत। सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना इंसान का, शैतान है और मौत है और गुनाह है। तो जब खुदावन ऐसा करेगा, गुनाह को तो उसने 1000 साल बादशाही में खत्म किया, और अब मौत को और आलमे अरवाह जितने जो सारे मुर्दों को खाती है, कलाम कहता है कि परमेश्वर आलमे अरवाह को भी आग की झील में डाल देगा। दूसरे लफ्जों में मौत को भी मौत आ जाएगी। हालेलुया। ये खुदावंद के प्लान है मेरे अजीजों। मौत को भी मौत आ जाएगी। इब्लीस जो मारता है, खुदावंद उसको आग की झील के अंदर जला देगा। अगला प्लान जो खुदावंद का है वो है सफेद तख्त की अदालत, वाइट थ्रोन जजमेंट इसको बोलते हैं। सफेद तख्त की अदालत में फिर सारे मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। सारे जितने भी आदम से लेकर इस जंग तक, जूझ मजूझ की जंग तक जितने भी मुर्दे थे, मरे हुए थे, वो सारे जिंदा किए जाएंगे। और फिर क्या होगा? उनकी अदालत होगी। उस अदालत को आखिरी अदालत कहते हैं, उसे कहते हैं सफेद तख्त की अदालत। तो हम पढ़ेंगे सफेद तख्त की अदालत में क्या होता है। मुकाशफा 20 बाब उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ते हैं। प्रकाश दी पोथी 20वां बाब और 11वीं आयत। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसने देखा कि कोई शख्स सफेद तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, जीवन दी पोथी खोली गई। याद रखो कि जीवन दी पोथी च साडा ना होना जरूरी है। पिछले दिनों एक बंदे ने जीवन दी पोथी च अपना नाम लिखवाया। हालेलुया। ओ पोथी उस आखिरी अदालत दे विच खोली जाएगी। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। जिंदों का ही नहीं, बस मुर्दों का भी इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे अरवाह ने, पताल ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल यानी उनके कामों के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। आगे सुने। फिर मौत और आलमे अरवाह, पताल आग की झील में डाले गए। क्यों डाले गए? अब इनकी जरूरत नहीं है। पताल की जरूरत क्यों पड़ेगी जब किसी ने मरना ही नहीं है? तो फिर मौत और आलमे अरवाह, पताल आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और फिर खत्म। इसके बाद कोई मौत नहीं। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। वो ये अफसोस वाली बात है, ये सोचने वाली बात है हमारे लिए मेरे अजीजों। आज अगर हम मर जाएं तो क्या ऐसा है कि हमारे किताब हयात के अंदर क्या हमारे नाम मिलेंगे? ये सोचने वाली बात है। और पताल में नहीं, अब आग की झील में है। और क्या लिखा है? मुकाशफा 20 की 10 में क्या लिखा हुआ था? और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस
आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान मुखालफे मसीह और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। और वो सब भी जिनके नाम किताबे हयात में नहीं है। कौन कौन? अबलीस, मुखालफे मसीह, झूठा नबी जो उसके हमायत करेगा, और उसके बाद वो सब लोग जिनका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नहीं है। ये अफसोस है उन लोगों के ऊपर, उन जिंदगियों के ऊपर जो कभी ये नहीं सोचते कि क्या अगर मैं मर जाऊं तो क्या मेरा नाम किताबे हयात में लिखा है कि नहीं है। अगला प्लान हम देखते हैं। ये वंडरफुल प्लान है। ये तस्वीर आप गाहे बगाहे कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। न्यू जेरूसलम, नया यरूशलेम, हम उस पर बात करेंगे। ये नया यरूशलेम है, यहोवा बाप की बादशाही का आगाज है मेरे अजीजों। और इसको हम पढ़ेंगे प्रकाश दी पोथी 20वां बाब और दी पहली आयत तो, मुकाशफा 20 बाब पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। 21 बाब। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी। ठीक है, मुकाशफा 21वां बाब और उसकी पहली आयत अभी हमने पढ़ी है। दूसरी आयत है, बल्कि मैं पहली से ही पढ़ता हूं। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। आज जो आपको जमीन का गोला नजर आता है, इसके इर्द गिर्द आपको क्या नजर आता है? पानी। जमीन का जो आज का गोला हमारे पास है, जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, जिसको हम वर्ल्ड मैप बोलते हैं, उसके गिर्द पानी ही पानी है, समंदर जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये जो नई जमीन में हम शिफ्ट होंगे, नए घर में शिफ्ट होंगे, वहां पर जमीन पर समंदर नहीं होगा। इसलिए ये सिर्फ आपको हरियाली दिखाई गई है। दूसरी आयत। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। ये अलग है मेरे अजीजों। पहले जो खुदावंद यीशु ने 1000 साल बादशाही में टेंपल बनाया, वो जमीन की मिट्टी से, हाथ से बना हुआ था, इंसानों ने बनाया। लेकिन ये जो खुदावंद का खेमा आसमान से आ रहा है, वो आसमानी है, और वो हमारी जमीन के ऊपर भी नहीं रखा जाएगा। वो उसको रखने के लिए एक नई जमीन भी चाहिए। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था, सजा हुआ था, जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। बड़ा खूबसूरत, हर तरह से सजा हुआ। हम इंडियन दुल्हनों को देखते हैं, जब वो सजती हैं, जब शादी होती है, तो कितना जेवर पहना होता है, कितना मेकअप किया होता है, कितने शानदार कपड़े पहने होते हैं। लेकिन वो शानदार, वो मेकअप, वो ज्वेलरी इस के मुकाबले में, नए यरूशलेम के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं। आगे आगे चल के आप देखिएगा क्यों। तीसरी आयत। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। हालेलुया। पहले खुदा अपना तख्त हमारे दिलों पर लगाता है, दूसरे स्टेप में वो अपना तख्त यरूशलेम में लगाता है।
लेकिन अब क्या करता है, वो पूरा हेवन ही उठा कर हमारे पास ले आता है। ये है उसकी मोहब्बत, ये है बाप की मोहब्बत मेरे अजीजों। यीशु ने क्या कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं, घर तैयार करता हूं। आज हम सारी जिंदगी अपने घरों को बनाने में लगा देते हैं, झूठ बोल, फ्रेब बोल, दूसरों को गिरा, लेकिन हमने कभी इसके बारे में नहीं हमने कभी गौर किया। ठीक है, तो मेरे अजीजों, खुदावंद कहता है कि हमें अपनी नजर कहां पर रखनी है? आसमान की बादशाही पर रखनी है, आसमानी चीजों के ऊपर रखनी है। और ये है बर्रे की दुल्हन है, ये है वो शहर मेरे अजीजों। इसको कहते हैं बर्रे की दुल्हन। किसकी? बर्रे की। और बर्रा कौन है वैसे? प्रभु यीशु है। यूहन्ना नबी, याहया नबी यीशु को देख के क्या कहता है? देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और बर्रे की दुल्हन किसको कहा जाएगा? बर्रे की दुल्हन वैसे कलीसिया को, इस शहर को नहीं, खुदा को इस शहर से भी प्यार नहीं है, वो नाम नहीं देता। वो इसके अंदर जो दुल्हन है उसको नाम देता है। कहते हैं शहर को ना देखो कि वो कितना सुंदर है, ये देखो कि बर्रे की दुल्हन कितनी सुंदर है। और उसकी नजर इस सोने के बने हुए शहर से नहीं है, आपके ऊपर है। हालेलुया। आप वैल्यू रखते हैं खुदावंद की आंखों में, खुदावंद के प्लान के अंदर हैं, उसके दिल के अंदर हैं, उसके मंसूबे के अंदर हैं। वो आपके लिए आंसू बहाता है मेरे अजीजों। अब हम देखते हैं इस शहर के अंदर, थोड़ा सा झांक के देखते हैं कि ये जो नया यरूशलेम है ये कैसा होगा अंदर से, क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर। और ये सब कुछ हमें मुकाशफा की पोथी किताब में मिलता है। कैसे इसको हम देखते हैं, इसके गेट से शुरू हो जाते हैं। गेट कुछ इस तरह से बना होगा और देखते हैं वो कौन सी लकड़ी इस्तेमाल हुई है उस गेट के लिए। हम देखेंगे मुकाशफा 21 बाब। जब मैं मुकाशफा कहता हूं तो याद रख लें प्रकाश दी पोथी, मुकाशफा 21 बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। और उस शहर और उसकी शहर पनाह होती है दीवारें, उसकी दीवारें बड़ी और बुलंद थीं और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे। पहरेदार कौन ने? फरिश्ते। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ नहीं रखिया जड़ा पी के सुता होवे ते चोर आके लुट ले जान। फरिश्ते उसके पहरेदार हैं। उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। किन के नाम? 12 कबीलों के नाम। क्यों कबीलों के नाम? क्यों पूरी दुनिया में से उनके नाम क्यों? चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आप उसकी चुनी हुई दुल्हन हैं, याद रखें। चुना हुआ होना यह कोई छोटी बात नहीं है मेरे अजीजों, उसका रहम है। इसलिए नहीं कि इस्राएली बड़े चंगे हैं पूरी दुनिया से, बस खुदावंद ने उनको चुना है, वो खुदावंद की चुनी हुई कौम है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि हम उनके लिए बरकत चाहें उनके लिए। खुदावंद कहता है ऐ इस्राएल जो तुझे बरकत दे मैं तुझे बरकत दूंगा। जो इस्राएल को बरकत देगा खुदा उसको बरकत देगा, और जो उस पर लानत करेगा खुदा उस पर लानत करेगा। ये खुदा का वादा है। तो अपनी दुआओं में इस्राएल को बरकत देना मत भूलें।
खुदावंद कहते हैं इन दरवाजों के ऊपर उनका नाम होगा। यहां पर किसका नाम हो सकता है, कोई बताएं जरा कबीला? यहूदा का, है? रोबन का कबीला, आशर का कबीला, नफ्ताली का, बेंजामिन का, ये चुने हुए लोग हैं। और उस वक्त याद रखें, आज आप भी जब खुदावंद में अकेले खड़े हो जाते हैं अपने खानदान के अंदर, तो खुदा खुशी से भर जाता है और फिर कहता है मेरे बेटे तू पूरी दुनिया में एक साइड पर खड़ा होगा और सारी दुनिया एक साइड पर होगी, तू फिर भी भरा होगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और खुदा इनके ना अब्राहम अकेला, पूरी दुनिया शैतान के कब्जे में चली गई थी एक दफा, अब्राहम अकेला खुदावंद में खड़ा रहा और खुदावंद ने उसे कौम बनाया और उस कौम का नाम इस्राएल रखा और उसके 12 बेटे थे। और आज अब्राहम की वफादारी यह है कि उसके बच्चों के नाम, उसके पोतों के नाम दरवाजों के ऊपर लिखे जाएंगे। और लिखा है और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। लगता है जो लाहौर के 12 दरी है वो इसी को सोचकर उन्होंने बनाया, उसके भी 12 दरवाजे हैं। और 12 दरवाजे 12 लकड़ी के, नहीं लकड़ी नहीं है, और 12 दरवाजे 12 मोतियों के बने हुए थे। वाओ, मोती, लकड़ी के दरवाजे नहीं, मोतियों के दरवाजे। हालेलुया, मोतियों के थे। हर दरवाजा एक मोती का था और शहर की सड़क साफ शीशे की मानिंद खालिस सोने की थी। आज थोड़ा सा भी सोना लेने जाओ ना तो सुनार कुछ ना कुछ विच अपना हाथ बहा जाता है, वो कुछ मिलावट कर जाता है, लेकिन खुदा जो बनाता है उसकी पूरी सड़कें ही सोने की हैं और खालिस सोने की हैं। ये दरवाजे होंगे और कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे। अब हम देखते हैं उसका साइज कितना होगा। साइज ऑफ न्यू जेरूसलम, जो आसमान से शहर बना हुआ आएगा जमीन के ऊपर, उसका साइज कितना बड़ा होगा। ये हम पढ़ेंगे मुकाशफा 21 बाब की 16 आयत में। और वो शहर चकोर वाक़या होता था, यानी 4 कोनों वाला था, जैसे वो बिल्डिंग नजर आ रही है, चकोर था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को, यानी फरिश्ते ने शहर को गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। ये फरिश्ते की पैमाइश थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी यानी फरिश्ते की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। 144 हाथ। अगर हम इनको माइल्स में करें, मीलों में करें, तो ये बनती है 1380 मील ये चौड़ा और ऊंचा शहर है। और धरती पर आज हम जमीन को जब ग्लोब को देखते हैं तो वो है 3956 माइल्स, उसका पूरा रकबा जो अगर नापा जाए तो उस शहर को अगर जमीन पर रखा जाए तो वो पूरा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो जब जमीन पर टिकेगा, क्योंकि जमीन गोल है, टिकेगा तो साइडों के ऊपर जगह नहीं बचेगी। आप उसको गौर करें कि वो जमीन पर अगर रखा जाए तो साइडें, फिर जमीन, ये शहर क्या करेगा? कभी इधर को डोल जाएगा और कभी इधर को डोल जाएगा। इसलिए इस धरती पर जिस पर आज हम हैं, ये शहर वहां पर नहीं होगा।
اس لیے یہ کنفیوژن چھوڑ دیں کہ وہ یروشلم میں، یہ جو اسرائیل کے اندر آج یروشلم ہے وہاں پر یہ شہر آئے گا، وہاں پر نہیں. یہ نیو یروشلم ہے، اور یہ نئی جگہ پر ہوگا، نئی دھرتی پر ہوگا جہاں پر سمندر بھی نہیں ہے. ہاللیلویا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر، اس کو ہم 21ویں باب کی 18 آیت میں پڑھتے ہیں، اور اس کی شہر پناہ یعنی دیواریں، شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی. یشب پتھر کو کہتے ہیں. یشب، یہ یشب ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، یشب کی تھی. اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو. سونا بھی ایسا کہ آپ اس کے یہاں سے باہر دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ شہر کے اندر تک بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، دیواروں کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کا یہ شہر ہے. واو، ایکسائٹڈ ہے؟ سب بولیں گے ہاللیلویا. تو میرے عزیزو، یہ خداوند کے پلان ہیں ہمارے لیے، جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ شہر ایسے نہیں ہے کہ زمین پر ہی اس کی بنیاد رکھ دی جائے، اس کی پہلے بنیادیں رکھی جائیں گی. اور وہ بنیادیں جو ہیں کتنے سٹیپ کی ہوئیں گی؟ 12 سٹیپ کی ہوں گی. اور ان کے اوپر کیا ہوگا؟ کن کے نام ہیں؟ یہاں پر مجھے پترس کا نام سب سے پہلے نظر آ رہا ہے. خداوند نے پترس کو کیا کہا تھا؟ تو پیتروس ہے، اور تیرے اوپر میں اپنی کلیسیا کی، اپنی چرچ کی بنیاد رکھوں گا. تو ہے نا وہ وعدوں کا سچا خدا. وہ یہ نہیں ہے کہ کہہ کے بھول گیا، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. کیونکہ یہ ہے پترس، اور اس کے اوپر چرچ کی بنیاد رکھی گئی ہے. خدا بلڈنگ کو نہیں دیکھ رہا، خدا کلیسیا کو دیکھ رہا ہے میرے عزیزو. اور بنیاد اس کے اوپر، اور پھر باقی فلپس، یہ سارے نام آپ کو نظر آتے ہیں. اور اوپر ایک نام آپ کو بدلا ہوا نظر آتا ہے، ماتیاس. وہ ماتیاس جو ہے وہ بدل گیا کیونکہ ایک چور تھا ان میں سے، اور یہودا اسکریوتی. ہاللیلویا. تو یہ ہے میرے عزیزو، خداوند اپنے خادموں کو عزت دے گا، برکت دے گا. اور پھر وہاں پر کوئی ہیکل کی بھی ضرورت نہیں ہے. یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی میں ہیکل تھی کہ نہیں تھی؟ جس کو حزقیل کی ہیکل کہتے ہیں. لیکن یہ شہر کچھ فرق ہے. وہ لکڑی سے، پتھر سے بنا ہوا تھا، یہ سونے اور موتیوں سے بنا ہوا ہے. اور اس کو ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر سورج کی بھی، چاند ستاروں کی کوئی لوڑ نہیں ہے. اور کیا ہے؟ لیمب از دا لائٹ آف دا سٹی. اس شہر کو چمکانے والا، اس میں روشنی کرنے والا کون ہے؟ یسوع. کیا یسوع نے کبھی کہا ہے کہ میں دنیا کا چانن ہوں؟ یس، اس نے کہا ہے I am the light of the world. میں دنیا کا نور ہوں. میں یسوع چانن دنیا دا کرے ختم ہنیرے نو. اور واقعی میرے عزیزو، جب وہ کہتا ہے تو وہ کرتا ہے. اور وہاں پر سورج کی روشنی نہیں، کلام کہتا ہے وہاں پر برے کی، یسوع مسیح کی روشنی ہوگی. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو کہیں آمین. اور زندگی کے درخت کی وجہ سے ہمیں نکلنا پڑا تھا. آپ کو پتہ ہے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ کون بتائے گا مجھے؟ اس نے غلط پھل کھایا تھا. ہاں، اور اس کے علاوہ بھی ایک وجہ تھی. ہاں،
یہ بھی ایک وجہ تھی. خداوند نے کہا تھا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کے درخت میں سے بھی کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے، پاپ میں جیتا رہے. میرے عزیزوں، اب خدا پھر سے وہ موقع دے گا. یہ زندگی کا درخت اس شہر کے درمیان میں لگ جائے گا اور اس کے آر پار جو ہیں وہ زندگی کا آب حیات کا چشمہ بہے گا. اور یہ ادھر والے لوگوں کو بھی، یہ پورا شہر کے درمیان کا حساب دیکھ رہے ہیں، ادھر والے لوگ بھی اس میں سے پھل لے سکتے ہیں. اور ہر مہینے میں یہ پھلتا ہے اور ہر مہینے میں ہی اس پر فرق پھل لگتے ہیں. اور کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے پتوں سے لوگوں کو شفا ہوگی، پتوں سے شفا ہوگی. ہاللیلویہ. خداوند ہمارے لیے ونڈرفل پلان رکھتا ہے میرے عزیزو. اور اب جیزس کیا کہہ رہا ہے؟ جیزس از کمنگ سون. آپ نکالیے میرے ساتھ مکاشفہ 22 باب اور اس کی 12 آیت سے ہم پڑھیں گے. یسوع مسیح کہتا ہے، پرکاش دی پوتھی 22واں باب اور اس کی 12 آیت. سنیے، یہ باتیں غور سے سننے والی ہیں. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. کون عدالت کرنے کے لیے آئے گا؟ یسوع. اور کہتا ہے میرے پاس اجر بھی ہے. اجر کبھی کسی کے لیے برا ہے اور کسی کے لیے اچھا ہے. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا ہوں. آپ کے چرچ کا نام کیا ہے؟ الفا اور اومیگا. خداوند کہتا ہے میں ہوں الفا اور اومیگا. میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں. اور آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا، میں ہی خدا ہوں، میں شروع سے وہ باتیں جانتا ہوں اور جو اینڈ پر ہے وہ بھی باتیں جانتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، اپنے کپڑے دھوتے ہیں. لاڑی یہ نہیں کھچ لے تیاریاں کہ تیرا لاڑا آن والا ہے. پالا چٹے مل مل ہو جا تو تیار، جیڑا تینو پاؤن والا ہویا ادھیکار. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے، اپنے کپڑے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. اور ان دروازوں سے، وہ جو 12 دروازے ہیں، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. لیکن افسوس، مگر کتے پتہ کون ہیں؟ جو گناہ کو ایک دفعہ نگلتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار بھوک لگ گئی ہے، اور پھر اسی گند کو دوبارہ کھا لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار توبہ کر کے، بار بار گناہ، بار بار بدی میں جو ڈاواں ڈول ہیں. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ. پھر سے میں بولوں گا، آپ سب بولے کہیں گے آ. اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ. اور سننے والے بھی کہیں آ. اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. ہاللیلویہ. مفت آب حیات آج مل رہا ہے میرے عزیزوں، اور وہ یہ ہے، یہ کتاب زندگیاں بدلتی ہے میرے عزیزوں. لوگ اس پر جھوٹے الزام لگائیں تو لگائیں، لیکن یہ کلام یہ کبھی بدلتا نہیں ہے، بلکہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور خداوند ہماری عقل کی آنکھوں کو کھولے تاکہ ہم سچائی کو جان سکیں.
ہم خدا کے کلام کو پہچان سکیں اور اس پر جھوٹا الزام لگانے کی بجائے ہم ایمان رکھ کر اس کلام کے مطابق چلیں تاکہ ہمیشہ کا جیون پا سکیں، زندگی پا سکیں۔ خود آج کے اس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی ہالےلویا۔